Hello everyone. So this is the fourth video on chapter 5, class 9th. Name of the chapter is Fundamental Unit of Life. So far we have made three videos already. First video, discovery of the cell, shape of the cell, size of the cell, and cell theory. Second video, we studied about the protoplasm and cytoplasm, cell membrane and cell wall, and their differences, their importance, their functions. Then we have studied in third video about the cell organelle, where the various type of organelle were there: mitochondria, plastids. Then उसके बाद endoplasmic reticulum, Golgi body, vacuoles and lysosomes and ribosome and centrosome. 8 cell organelle we already studied there. Now we are studying about nucleus. So what is nucleus? Nucleus is the dense spherical structure found in all the eukaryotic cell. Pay attention, eukaryotic cell. What is meant by the eukaryotic cell? Are those cells which have nucleus at least present in some stage of the life. At least when they are just newly formed, तब तो न्यूक्लियस होगा, बाद में हो सकता है they may not require nucleus anymore, तो they may dissolve it. ठीक है. Secondly क्या है, generally nucleus is found at the center of the cell, but due to the large size of vacuole in case of plant cells, the nucleus may be pushed aside. बोले तुम एक साइड जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है. ठीक है. Third, it is discovered by the Robert Brown in 1831. This is the same Brown who has discovered Brownian movement in the water. Then it is double membrane. इसमें दो membrane होती है. You can see the diagram. This is the nucleus. If we enlarge, it look like this. These are the nuclear membrane and nucleoplasm, and then chromatin network and the nucleolus. If you enlarge the membrane, you will find the two membranes. That is outer membrane, inner membrane. There are a number of pores found there. They are called nucleopores. Okay. So this is the. Then fourth, usually cell has one nucleus, but sometimes they may have more than one nuclei. Like the plural of nucleus is nuclei. Okay, so more than one nuclei. That is in paramecium there are two, and in the skeletal muscles and in fungi sometimes there are many. Okay, so that's the number. Then some cells may even lose their nucleus on maturity, like RBC of mammals, except that of camels. कैमल मैमल होते हुए भी उसका न्यूक्लियस नहीं है, उसके में न्यूक्लियस मरता नहीं है, उसमें पड़ा ही रहता है न्यूक्लियस, बाकियों के अंदर न्यूक्लियस डिजॉल्व हो जाए. एंड सी ट्यूब इज़ द एग्जांपल ऑफ प्लांट्स. ठीक है. फंक्शंस क्या कर रहा है न्यूक्लियस? इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल. खुद पूरी सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, खुद की भी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है. खुद की एक्टिविटी क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन, कि उस सेल को कब डिवाइड करना है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन उसके पास है. व्हेन ए सेल हैज़ टू बी डिवाइड, व्हेन इट सेल हैज़ टू मल्टीप्लाई, दैट इंफॉर्मेशन ऑल्सो न्यूक्लियस कंट्रोल कंटेन. एंड द थर्ड, इट होल्ड्स all the other things which are required in the nucleus, like nucleoplasm, then chromatin material, plus chromatin material तो chromosome ही है, and plus it has got what you call nucleolus and other non-living materials which are responsible for functioning of the nucleus. So this is all about nucleus. अब बात करते हैं nuclear membrane की. Nuclear membrane, what is nuclear membrane? Nuclear membrane are covered, each nucleus is covered by two membrane, and together they are called nuclear envelope. It is similar to the cell membrane in its composition and function. Okay. Third, there is a gap found between the two membranes. This is called perinuclear space. Gap found between the two nuclear membrane is called perinuclear space. Fourth, it has several pores. Just now in the diagram I shown there are several pores. These pores are called nucleopores. And then it is also found in the continuation with the endoplasmic reticulum in the outer side. Okay. So these are two membranes. You can see outer membrane, inner membrane. These are the pores. These are called nucleopore. These are the chromatin network, and this is nucleolus. Okay. And the fluid which is found in it is called nucleoplasm. Okay. So this is the diagram. Nucleoplasm की बात करते हैं. Everything which is inside the nucleus is collectively known as nucleoplasm. And the nucleoplasm is jelly-like fluid which contain chromosomes, nucleolus, ribosomes, etc. Okay. चलिए. And it contain all the raw material for the synthesis of new DNA and RNA, because DNA and RNA यहीं से बन के जाएंगे. बात करते हैं क्रोमोसोम्स की. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्रोमोसोम ही है जो न्यूक्लियस को इतना इम्पोर्टेंट दे रहा है. एंड इट इज़ द क्रोमोसोम विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़. So since it is found in the nucleus is controlling. तो क्या होता है क्रोमोसोम? They are the thread-like structure. ठीक है. They can be stained when they are used in लैब में हम उसको स्टेन करते हैं तो ये कलर हो जाता है. The number, shape
number and the shape in any cell of any particular species is always fixed. Like in human being there are 46 chromosome. अमेरिका से लो, इंडिया से लो, जर्मनी से लो, सोमालिया से लो, बड़ा लो, छोटा लो, काला लो, पीला लो, जैसा भी इंसान ले लो, न्यूली बॉर्न ले लो, बुढ़ा ले लो, हर एक के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन ईच ऑफ देयर सेल्स. ठीक है. दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स. व्हाट? क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ व्हाट? डीएनए एंड प्रोटीन. एंड दे आर हैविंग a constriction found at the center. That constrictions को हम कहेंगे centromere. अभी डायग्राम देखेंगे अच्छे से समझ सकेंगे. During the cell division, chromosomes are attached to the spindle fiber with the help of this centromere. ठीक है. Centromeres are in the higher organs are found in chromosomes in higher organs are found in pairs. क्रोमोसोम जो है जोड़े में मिलता है. कैसे मिलता है? ये देखिए, यहाँ देखिए, ये और ये एक जोड़ा और नंबर 1 2 3 4 करते हुए हमारे 22 पेयर्स, दैट इज 44 45 एंड 46. ये एक जोड़ा है जो थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, बाकी सारे एग्जैक्टली सेम है. सो द साइज, शेप, है ना, और द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमेयर, दिस इज सेंट्रोमेयर, द कंस्ट्रिक्शन. ओके, तो दे आर ऑलवेज फिक्स्ड. तो उसको हमने आइडेंटिफाई करा, उनको नंबर डाल दिया यहाँ पे. एंड ह्यूमन कहीं से भी ले लेंगे दुनिया में, उनके क्रोमोसोम ऐसे ही दिखेंगे. ठीक है. बट क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग. ओनली एट द टाइम ऑफ डिवीजन दे विल अपीयर लाइक दिस. सो मोस्ट क्लियरली दे आर विजिबल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन द मेटाफेज स्टेज. ठीक है. सो टू स्टडी वी आर टू bring the cell to the metaphase stage, we have to arrest it, we have to take the photo and then study. So this is called karyotyping. The study of chromosomes are called karyotyping. चलिए, वो सब आपके कोर्स में नहीं है, आप केवल साइज शेप की बात करिए. In human being there are 23 pairs of chromosome. So 1 2 3 4 करते हुए 22 pairs and this is 23rd pair. 23 pairs है, यहाँ लिखा है, each one of which is different shape and size and bear different genes. Each chromosomes are bearing what? Genes. And it is the genes. ठीक है. 22 pairs are having genes for the various characters of the body. रंग, रूप, साइज, शेप, हर के जीन्स. कैसे बाल रहेंगे, कहाँ तक आएंगे, कहाँ नहीं आएंगे, कब झड़ जाएंगे, कौन सा, when will become bald, when the hair will start turning white, and what will be the shape of the eyes, what is the shape of the lips and all these. ये तो हैं जो वेरिएबल डिफरेंसेस है ना, जो जीन्स करेक्टर्स है. प्लस देर आर thousands and thousands of characters which are found which are same in all. In my body also hydrochloric acid is produced in stomach, your body also. My body also producing pepsin in stomach, your body also. My body all alimentary canal having mucus, your body also. My body also have kidneys, same type of function, your body also. So there are visible differences and there are similarities. All these are because of the क्रोमोसोम. एंड 22 पेयर्स में वो सब कुछ सेम है. ठीक है. लेकिन जो 23rd पेयर है ना, वो एक्स और वाई जो लिखे हैं, दैट इज डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ ए पर्सन. इफ बोथ ऑफ दीज आर एक्स तो ये गर्ल होती. यहाँ पे एक एक्स और एक वाई दिखा है, सो ये किसी बॉय के क्रोमोसोम्स है. ठीक है. ये बोथ वर ऑफ सेम टाइप, एक्स टाइप, तो इट वुड हैव बीन द क्रोमोसोम्स ऑफ अ गर्ल. और ये क्योंकि एक बॉय और एक मतलब एक एक्स और एक वाई है, तो इसका मतलब क्या है, ये बॉय हो गया. ठीक है. ये क्रोमोसोम्स के बारे में हो गया. फंक्शंस क्या करता है क्रोमोसोम्स? तो क्रोमोसोम्स आर द कैरियर्स ऑफ जीन्स. उसी के ऊपर जीन्स बैठे रहते हैं. जीन्स कैसे बैठते हैं वो भी अभी अपन समझते हैं. द जीन्स आर द स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ DNA which code for a character. अभी हमने पढ़ा था क्रोमोसोम किसके बने हैं? They are made up of DNA. Chromosomes are made up of DNA and protein. A segment of the DNA from one place to another place may code for a particular character. Say for example skin color. No, यानी एक से नहीं होता, लेकिन हाँ ठीक है मान लीजिए. So वो information वहाँ पर रहेगी. That information of that segment of DNA on a particular chromosome in a particular location is called gene, and it will be same in all the individuals. Variation may be there but the position is same. Okay? Then they are responsible for controlling all the traits in the human. Now traits वही चीज़ होगी. देखिए अब मेरा स्किन कलर एंड आपका स्किन कलर डेफिनेटली डिफरेंट होगा. सो माई कलर का ट्रेट ये एक ट्रेट हो गया, आपके स्किन का कलर वो दूसरा है, वो उसका एक ट्रेट हो गया. सम आर टॉल, वो उसका ट्रेट है. सम आर ड्वार्फ, दैट इज देयर ट्रेट. सम हैव गॉट लॉन्ग नेल, दैट इज देयर ट्रेट. सम हैव गॉट ऐसे नेल्स होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे से, और बच्चा कुछ वो काटते रहते हैं, तो वो उनका ट्रेट हो गया. तो ट्रेट ब्लैक आइज, सम हैज गॉट ब्राउन आइज, दैट इज द ट्रेट्स ऑफ द आई कलर. ओके. सम ऑफ ऑल द जीन्स विच आर फाउंड इन एनी पर्टिकुलर स्पीशीज is called genome.
ह्यूमन बीइंग में टोटल जितने जीन मिलते हैं समवेयर अबाउट 35 to 40,000 जीन्स आर देयर इन आवर बॉडी, ऑल कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड जीनोम. ओके, तो जीनोम इज द सम ऑफ ऑल द जीन्स विच आर फाउंड इन अ स्पीशीज. ठीक है. देन इफ द डीएनए मेक्स आरएनए, मतलब यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम हैज गॉट डीएनए, डीएनए मेक्स आरएनए एंड आरएनए मेक प्रोटीन एंड प्रोटीन act as an enzyme and then that perform particular character. Chromosomes are also responsible for reproduction of a cell and thereby reproduction of an individual. तो ये हो गए सब क्रोमोसोम और इनके सबके फंक्शन. लास्ट है न्यूक्लियोलस, देख लेते हैं. न्यूक्लियोलस ये रहा न्यूक्लियोलस है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है. ठीक है. दे मे बी एज मेनी एज 500 इवन. तो देयर आर डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियस. सेल में न्यूक्लियस डेंस स्फेरिकल है और न्यूक्लियस के अंदर डेंस स्फेरिकल न्यूक्लियोलस है. ठीक है. दे आर मेड अप ऑफ राइबोसोम्स एंड प्रोटीन्स एंड इनका काम भी क्या होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन. सो दे मे बी इन फ्यू इन नंबर. ठीक है. एंड दे डिसअपियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन. सेल डिवाइड हो रहा होता है तो ये कहते हैं यार अब हम चलते हैं, अब हमारा काम हो गया सेल डिवीजन करने का. सो दे आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन. सो दैट्स ऑल अबाउट न्यूक्लियस. ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक मतलब क्या है? प्रोकैरियोटिक मतलब कैरी वर्ड स्टैंड फॉर न्यूक्लियस. प्रो मतलब पहले, मतलब न्यूक्लियस बनने के भी पहले वाली सेल्स हैं, मतलब इसमें न्यूक्लियस होते ही नहीं. दीज आर दोज सेल्स विच लैक्स न्यूक्लियस इन ऑल द स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ. कभी भी नहीं मिलेंगे इनके अंदर न्यूक्लियस, इसमें कभी न्यूक्लियस है ही नहीं. देख लीजिए कहीं न्यूक्लियस बना रखा है कि नहीं बना रखा. दे डोंट इवन हैव एनी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली. माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, लाइसोसोम कुछ भी नहीं है इसके अंदर. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ही नहीं, न्यूक्लियस भी नहीं है, और दूसरे जो भी सेल ऑर्गेनेली विच हैव मेम्ब्रेन दे आर नॉट देयर. ठीक है. देन द साइज वेरीज फ्रॉम 0.5 to 10 माइक्रोन. ठीक है. 10 माइक्रोन तो बहुत बड़ा हो गया. 0.5 से लेकर के 5 माइक्रोन के अंदर ही रहता है. दैट इज वाई दे आर सो स्मॉल दैट वी कांट सी हाउ मेनी बैक्टीरिया आर देयर, वी कांट सी. ठीक है. दे हैव ओनली राइबोसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स. यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, लिखा हुआ है कई जगह पे ये राइबोसोम्स है. हाँ लिखा है राइबोसोम्स, लिखा हुआ ही नहीं. ठीक. तो ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये राइबोसोम्स है, ये राइबोसोम्स है ना. और इसके पास में जहाँ एक स्ट्रक्चर होंगे उनको कहेंगे सेंट्रोसोम. और ये एक ही क्रोमोसोम है. दे हैव गॉट ओनली वन सिंगल क्रोमोसोम इन देम. एंड ये वैक्यूल गलत लिखा है, इसमें वैक्यूल नहीं मिलते हैं. ठीक है. और ये सर्कुलर प्लाज्मिड है. ठीक है. सो ये हो गया. तो ड्यू टू द लैक ऑफ सेल ऑर्गेनेली एंड न्यूक्लियस देयर डिवीजन इज फास्ट. स्पेलिंग गलत है, दे डिवाइड्स फास्टर. ठीक है. आर गलत लग गए, तो दे डिवाइड फास्टर. तो मतलब उनका सेल डिवीजन बहुत जल्दी हो जाता है. प्रैक्टिकली इन एवरी 20 मिनट्स बैक्टीरिया डबल हो जाते हैं. बैक्टीरिया आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ इट. ठीक है. यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होंगे वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं. यूकैरियोटिक सेल्स आर दोज विच आर न्यूक्लियस एटलीस्ट इन सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ. दे आर गॉट ऑल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली. माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेगा, प्लास्टिड भी मिल सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा ही मिलेगा, गोल्जी बॉडी मिलेगा ही मिलेगा. प्लांट ऑफ द डिक्टोसोम कह देंगे, होगा तो सही. वैक्यूल मिलेगा ही मिलेगा. लाइसोसोम्स इन एनिमल्स, प्लांट्स में वो नहीं मिल रहा है. ठीक है. तो ये सारे सेल ऑर्गेनेली मिलेंगे, वैक्यूल वगैरह. ठीक है. तो दे आर फाउंड इन यूकैरियोट. तो डिफरेंस देखते हैं. पहला न्यूक्लियस. प्रोकैरियोट नेवर फाउंड इन एनी स्टेज ऑफ देयर लाइफ. दे मे हैव बट दे मे लूज लेटर ऑन. मे लूज, नॉट नेसेसरली. 99% ऑफ द सेल इवन हैव न्यूक्लियस टिल देयर डेथ. ठीक है. मतलब डेथ मतलब डिवीजन के पहले तक. मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली इनमें नहीं होंगे. नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो प्लास्टिड, नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो गोल्जी बॉडी, नो लाइसोसोम्स एंड नो वैक्यूल्स. इनमें ये होंगे एज पर देयर नीड. क्रोमोसोम, दे गॉट ओनली वन क्रोमोसोम. दे आर जनरली हैविंग मोर देन वन क्रोमोसोम. वन वाला तो कोई एग्जांपल ऐसा है नहीं. न्यूक्लियोइड रीजन. अब क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं मिल रहा है तो क्रोमोसोम इज सराउंडेड बाय ए डेंस स्फेरिकल डेंस साइटोप्लाज्म. तो डेंस साइटोप्लाज्म वाला जो रीजन है ना अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड. इनमें क्या जरूरत है न्यूक्लियोइड की? दे गॉट न्यूक्लियस. भाई इसको जरूरत ही नहीं है. ठीक है. सेल वॉल, तो प्रोकैरियोट विल ऑलवेज हैव सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. दे मे है और मे नॉट है. अगर है तो वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, पैक्टिन, सुबेरिन, काइटिन या इन चीज़ों की बनी रहेगी. ठीक है. डिवीजन टाइम, तो दे आर फास्टर बिकॉज दे डोंट हैव सेल ऑर्गेनेली, दे डोंट इवन हैव न्यूक्लियस. तो फटाफट एक क्रोमोसोम मल्टीप्लाई करा और साइटोप्लाज्म अलग हो गया, काम खत्म. दे विल हैव टू मेक ऑल दोज थिंग्स. तो कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पे. ठीक है. सो दिस विल टेक मोर टाइम.
Examples, all bacteria are prokaryotic and other than bacteria whatever cells are there they all are eukaryotic. बात करते हैं differences, आप यहाँ पे देख सकते हैं. These are the cell eukaryotic cells in which the mitochondria is there, Golgi body is there, ठीक है, endoplasmic reticulum is there, smooth and rough one, nucleus is there, and the other ये तो centrosome तो में भी मिलेगा, है ना, vacuola, हाँ, तो others lysosomes and all, तो ये सब मिलेगा आपको, वहाँ नहीं मिलता ये सब. चलिए बात करते हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. ओके, प्लांट सेल वॉल की बात करते हैं. दे आर फाउंड इन द प्लांट बट दे आर एब्सेंट इन एनिमल्स, होते ही नहीं है, ठीक है. न्यूक्लियस तो इट इज़ फाउंड टूवर्ड्स ए साइड इन केस ऑफ प्लांट. वाई? बिकॉज द लार्ज साइज ऑफ वैक्यूल्स आर देयर, वो उसको धक्का मार मार के एक साइड में कर दे. बट एनिमल सेल दे आर ऑलवेज देयर. शेप, इनका शेप फिक्स हो जाएगा. वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल. दे डोंट हैव रिजिड सेल वॉल बट इट इज़ कवर्ड बाय ओनली इलास्टिक और फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन. सो ये तो फिक्स शेप नहीं होता. प्लास्टिड्स, सो दे आर not found here, they are found in plants in eukaryotic cell. Lysosomes generally absent, इनमें होंगे, ठीक है. सॉरी यूकैरियोटिक है प्लांट सेल की और एनिमल सेल की बात करें तो प्लास्टिड्स आर फाउंड इन प्लांट्स आर एब्सेंट इन एनिमल्स. लाइसोसोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट्स एंड दे आर प्रेजेंट इन एनिमल्स. वैक्यूल्स, दे आर लार्ज साइज इन प्लांट्स. वाई? बिकॉज दे टू कीप स्टोरिंग देयर वेस्ट. उनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छा डेवलप नहीं है, सो दे कीप ऑन स्टोरिंग देयर वेस्ट एंड देयर साइज विल गो ऑन इंक्रीजिंग. एनिमल्स दे गॉट इफेक्टिव एक्सक्रीटरी सिस्टम, कुछ भी हो तो वो निकालते रहते हैं, तो उनमें ये नहीं है. ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है. फिक्स शेप नहीं. यहाँ पे डिफरेंसेस लिख रखे हैं. सेल वॉल इसमें मिल रहा है, लार्ज वैक्यूल दिख रहा है, क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं, ठीक है. लैक ऑफ सेंट्रोसोम नहीं होंगे, सेंट्रोसोम यहाँ पे, ठीक है. लैक ऑफ लाइसोसोम्स नहीं दिख रहे हैं. यहाँ पे आप दिख रहे हैं लाइसोसोम भी दे सकते हैं, सेंट्रोसोम भी दे सकते हैं. इसका वाला सेल वॉल इज नॉट देयर, ठीक है. नो प्लास्टिड्स आर देयर, सेंट्रियोल्स आर देयर, ठीक है. यहाँ पे दिख रहा है क्या, ये रहे, ठीक है. एंड लाइसोसोम्स आर ऑल्सो देयर. सो दैट्स ब्रिंग अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. दिस इज comparatively small video, 17 minutes का, in compared to the all other videos what we had. Thank you for watching. Thank you for watching. ठीक है. और please give a like if you like, really like. नहीं है तो मना कर दो, नहीं है, पसंद नहीं है, ठीक है. Share it with the others and subscribe the channel if you are new on the channel. ठीक है. Press the bell icon and you will get the information related to new videos. तो चैनल प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करने में आपका और कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है, शेयर करने में. एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू मेक नोट्स देन टू मेक वीडियो. टेंस ऑफ टाइम आई टू क्या कहते हैं डिस्कार्ड द वीडियोस. कभी आवाज़ हो जाती है, कभी बेल बज जाती है, कभी लाइट चल जाती है, कभी एसी बंद हो जाता है, कभी टीवी में फ्लिकरिंग होने लगती है, किसी में क्या, किसी में क्या. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिस रिकॉर्डिंग डिवाइस ये बिकम गर्म हो जाता है. अभी 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है. सो जैसे ही कैमरा काम कर रहा है, 4K में रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो इट बिकम हॉट वेरी सून. सो ऑल दीज आर द रीज़न फॉर विच लॉट ऑफ एफर्ट इज़ बीन पुट. सो आई विल हाईली अप्रिशिएट इफ़ यू गिव अ लाइक एंड इफ़ यू आस्क अदर्स टू सब्सक्राइब. इफ़ यू तो ऑलरेडी सब्सक्राइब, ऐसा मैं मान के चलता हूँ. दूसरों को भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू बीइंग ए क्लास 9 स्टूडेंट ओनली वॉच इट. यू कैन आस्क एनीवन टू वॉच इट. दैट्स ऑल. थैंक यू.